آصف زرداری۔ آصف علی زرداری اس وقت اجلاس کی قیادت کر رہے ہیں۔ ایک اہم اجلاس طلب کیا گیا ہے، تمام ہی قیادت پاکستان پیپلز پارٹی کی طلب کی گئی ہے اس اجلاس میں، اور یہ مناظر اب تک نیوز نے براہ راست آپ تک پہنچائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک اہم اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ اجلاس کی صدارت شریک چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی آصف زرداری کر رہے ہیں۔ جی ہاں، بلاول بھٹو زرداری بھی اس وقت یہاں پر موجود ہیں، اور آپ مناظر جو اس وقت ملاحظہ کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم نواز شریف سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے، اور ابھی ان کی جانب سے ایک اہم پریس کانفرنس بھی کی جانے والی ہے، جس کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری یہاں پر موجود ہیں۔ آج سپریم کورٹ کی جانب سے جو تاریخی فیصلہ آیا ہے اس حوالے سے ایک اہم اجلاس ہوا، جس کے بعد اب پریس کانفرنس کی جائے گی، اور پیپلز پارٹی کی جانب سے آئندہ کا کیا لائحہ عمل ہوگا اس سے قوم کو آگاہ کیا جائے گا۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد یہ پریس کانفرنس باقاعدہ طور پر شروع ہو جائے گی۔ آپ اس وقت دیکھ بھی سکتے ہیں سابق صدر آصف علی زرداری یہاں پر موجود ہیں، بلاول بھٹو، اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کی جو مرکزی قیادت ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ جی بالکل، پیپلز پارٹی نے بھی وزیر اعظم نواز شریف سے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ہم نے آپ کو یہ اہم خبر یہاں پر پہنچائی، پیپلز پارٹی نے بھی وزیر اعظم نواز شریف سے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے، اور اس وقت آپ کے سامنے جو مناظر ہیں یہ اسلام آباد کے مناظر ہیں کہ جہاں پر پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کا ایک اہم اجلاس شروع ہو رہا ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، اور اس وقت یہ پریس کانفرنس کے حوالے سے ہم نے آپ کو مناظر دکھائے، پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اس وقت پیپلز پارٹی کی قیادت، اور یہاں پر اس وقت چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور ساتھ ساتھ شریک چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی آصف زرداری اس وقت یہاں پر موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں اب تک کے نمائندے رزاق کھٹی۔ رزاق، کیا تفصیلات ہیں مزید؟ جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو جے آئی ٹی ہم اس کو بھی مسترد کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں یہ قوم کے ساتھ مذاق ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو 2 ججز نے فیصلہ دیا وہ سینئر جج ہیں، اور ان کا ہی فیصلہ 19 گریڈ کے یہ لوگ فیصلہ کریں گے جے آئی ٹی میں، وہ ہمیں قبول نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیے گا کہ آج کی کیسے ہوا، کس طرح ہوا؟ ہم نے شروع سے پیپلز پارٹی کا یہ موقف رہا ہے کہ کبھی بھی پیپلز پارٹی کو یا قوم کو ان ججوں سے کبھی انصاف نہیں ملا۔ عمران خان کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب، آپ سے ہم نے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں، ہمارے ساتھ ملیں، اور ہم پہلے لیجسلیشن کریں، اور اس لیجسلیشن کو لے کے ہم سپریم کورٹ جائیں۔ انہوں نے ہماری بات نہیں مانی۔ وہ بھی ناتجربار سیاستدان ہیں، ان کو نہیں پتہ، نہ وہ کبھی جیل گئے، نہ کبھی انہیں ایف آئی آر میں کسی کا اپنا بیان لکھایا ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ جسٹس یہاں کس طرح چلتے ہیں اور جج یہاں کیسے جسٹس چلاتے ہیں۔ اس لیے وہ نہیں آ سکے، نہیں سمجھ سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان نے اپنی شہرت، اپنی سیاست چمکانے کے لیے ایک ڈرامہ کیا، جس سے میاں صاحب کو فائدہ ہوا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ کہتی ہے کہ آج پاکستان میں جمہوریت کا نقصان ہوا ہے، جمہوریت کو نقصان ہوا ہے، جسٹس کو نقصان ہوا ہے، جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں عوام کو دھوکہ دیا گیا ہے، عوام کو بیوقوف بنایا گیا ہے، اور عوام کے ساتھ ایک بہت سخت مذاق کیا جائے۔ ونس اگین اس ججمنٹ کو ہم پورا پڑھیں گے، میرے وکلاء پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہم کمپلیٹ اس پہ تبصرہ کریں گے اور آپ دوستوں کو انفارم کریں گے۔ پھر جو ہمارے سامنے بات آئی ہے اس پہ ہمارا یہ تجزیہ ہے۔ بات کرنی ہوگی، اس کے بعد پھر آپ اپنا تعارف کرائیں گے، پھر آپ کو سوال دیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ اعتزاز صاحب، جو بات ابھی صدر پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز اور سابق صدر جناب آصف علی زرداری صاحب نے کی ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑے غور اور بڑے تبادلہ یہاں خیالات 2 دن سے ہوتا رہا ہے، اس کو سوچ کے دیکھ کے بات کی ہے، اور یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جو 3 ججوں کا فیصلہ ہے وہ ناقص ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا
एहतसाबी अमल पे नवाज शरीफ के खिलाफ पहले भी जो JIT बनी, मॉडल टाउन की JIT बनी, उसका क्या बना? JIT बनाना नवाज शरीफ को राय फरार देना के मुतरादिफ है। और जिस तरह जरदारी साहब ने फरमाया, वो उसका कॉन्टेक्स्ट मैं बता दूं तनाज़ुर, कि आपने फरमाया कि 2 जजों का फैसला 3 जजों के हावी है और वो भारी है और वो ज़्यादा अहम है और वो फैसला है। उसकी वजह ये है कि 2 जजों ने, सीनियर जजों ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया है, सादिक और अमीन ना होने के बायस नाअहल करार दिया है। बाकी 3 जजों ने इस पे इस राय की तरदीद नहीं की। उन्होंने सिर्फ कहा है कि JIT के पास जाए मामला और ये फैसला मौखर कर दिया। उन्होंने इस राय की तरदीद नहीं की। तो 2 जजों की राय जो है वो असल में हकीकत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की राय समझी जा सकती है। हालांकि 3 जजेस ने कौम को मायूस किया है, लेकिन वो राय समझी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट की। इसलिए ये सदर साहब ने फरमाया कि 2 जजों का फैसला दरअसल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ये टेक्निकल बात है, इसलिए मैं इसको अर्ज करना ज़रूरी समझता था। बाकी शरीफ ख़ानदान पे हम पहले ही कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की रिवायत 1993 से लेकर आज तक ये है कि उन पे नरम हाथ रखा जाता है। 1993 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की असेंबली को बरतरफ किया जाता है, सदर इसाक खान करता है तो इल्ज़ाम करप्शन के इल्ज़ाम में, तो सुप्रीम कोर्ट 6 हफ्ते के अंदर उनको बहाल करता है असेंबली को, ये कह के कि करप्शन का इल्ज़ाम 58(2)B के लिए मौजू नहीं है असेंबली को बर्खास्त करने के लिए। 1996 में 3 साल बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की असेंबली और हुकूमत बर्खास्त होती है करप्शन के मुबैना इल्ज़ामात पर, और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट कहती है कि करप्शन के इल्ज़ामात पर असेंबली डिसॉल्व की जा सकती है। असगर खान के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई अमल दरामद नहीं होता, कोई इम्प्लीमेंटेशन बेंच नहीं बनता, जबकि NRO केस में फौरन इम्प्लीमेंटेशन बेंच बन जाता है। आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट पे मुस्लिम लीग नवाज हमला करती है, फिजिकली हमला करती है। कोर्ट रूम नंबर 1 पे वो हल्ला बोल देते हैं, 500-600 उनके वर्कर और मिनिस्टर्स और उनके सीनियर लीडरशिप, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस को कुर्सियां पीछे गिरा के और पिछले दरवाजे से भागना पड़ता है। आज तक उनका कुछ नहीं हुआ। 1999 में मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ साहब पे मुकदमा का फैसला आता है, उस फैसले के खिलाफ अपील होती है। अपील में वहां सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो टेप्स चलती हैं। ऑडियो टेप्स में सैफुर रहमान बता रहा होता है एक जज साहब से, सीनियर जज से, कि आपने फैसला कल जरूर कर देना है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर चाहता है कल फैसला किया जाए और ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए। और जज साहब कहते हैं जी जी मैं बिल्कुल करूंगा, कल तक मौका दे दे मियां साहब को। और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से भी की भी टेप्स चलती हैं, वजीर कानून नवाज शरीफ के उनकी टेप्स चलती हैं। उन टेप्स पर वो जो फैसला है हाई कोर्ट का, उसको कल अदम करार दे दिया जाता है। जजेस 3 जजेस फारिग होते हैं, 2 हाई कोर्ट के और जो चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के वो उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट में आ गए होते हैं। 3 जज फारिग होते हैं उन टेप्स पर। मियां नवाज शरीफ जिनकी बिहाफ पर, जिनके लिए वो सारी गुफ्तगू और वो सारे पेशकशें की जा रही होती हैं, उनको कोई हाथ नहीं लगाता, उन पे कोई उंगली नहीं उठाता, कोई जज उनकी तरफ अपने जजेस को से इस्तीफा ले लेते हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ को कोई तकलीफ नहीं पहुंचती।
तो इसलिए हम ये समझते हैं बदकिस्मती के साथ ये रवायत कुछ जारी रखी गई है, और इसकी चूंकि हमें तवक्को पहले से थी, हम पहले से कह रहे थे, बार बार मैंने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की रवायत है शरीफ खानदान पे नरम हाथ रखने की, आज जैसे सदर साहब ने कहा वो फिर साबित हो गया। एक चीज मैं अर्ज कर दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप ये भी जरा तकाबुल करें कि यूसुफ रजा गिलानी के केस में यूसुफ रजा पे कोई करप्शन का चार्ज नहीं था। चार्ज ये था कि 248 आर्टिकल के होते हुए भी वो पाकिस्तान के सदर को एक गैर मुल्की मैजिस्ट्रेट के सामने सरनगुम क्यों नहीं करते, और उनको नाअहल करार दे दिया गया। हालांकि आईन मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देता था सदर को, और वज़ीर आज़म के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो खत लिखे। सो ये भी एक बात मेयर साहब ने कराई है मुझे, और अहम बात है इस तकाबुल के। राठौर साहब जी, मेरा नाम ताहिर राठौर 24 न्यूज़ से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक कौमी जमात और एक कौमी जमात अपने पूरे एक पास्ट पर्सपेक्टिव में हम उसको देखते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जरदारी साहब क्यों जरूरत पेश आई कि इमरान खान अगर इनके साथ मिलता तो पनामा केसेस के हवाले से पीपल्स पार्टी मूव करती। एक बात। दूसरी बात, जैसा कि रेफरेंस दिया एतजाज अहसन साहब ने, मैं समझता हूँ क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गुज़श्ता हुकूमत को जाता है जिन्होंने 52B का खात्मा किया और उसके बाद शायद अब गुंजाइश नहीं छोड़ी किसी सदर। तो आप ये बताइए पीपल्स पार्टी को क्यों जरूरत महसूस हुई तहरीक इंसाफ की? जवाब दीजिए। मुझे जरूरत नहीं पेश आई उनकी, उनने खुद ये स्टेप लिया। तहरीक इंसाफ का तो जैसे फरमाया, तहरीक इंसाफ के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से हमारे पार्लियामान के दोनों लीडर्स ऑफ द अपोजिशन और जो हमारे पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं उन्होंने मिलके सारी अपोजिशन को इकट्ठा किया था। हमने TOR मिलकर बनाए थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये एक्सपीरियंस बताता है, हमारा आज तजर्बा सामने आ गया जो बातें हम कर रहे थे, कि जब तक हम वो कानून पास न करा लें, अदालत के लिए भी हदूदों का यूं तय न करा दे, उस वक्त तक ये अदालत मियां नवाज शरीफ का एहतसाब नहीं कर पाएगी। ये हमारा तजर्बा था, हमारा एक्सपीरियंस था जो आज सामने आ गया। सरदारी साहब, ये जो डिसीजन आया है चाहे सही आया या गलत आया, लेकिन इससे एक बात है कि मियां नवाज शरीफ साहब को एज हासिल हुआ है। अब आप बताएं कि आप इनका मुकाबला करने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का कोई ग्रुप बनाएंगे, इत्तेहाद बनाएंगे? अच्छा, मैं पहली बात तो आपसे एग्री नहीं करता कि इनको एज हासिल हुआ है। मेरा ख्याल है कि ये जाहिर हो गया है, पूरे पाकिस्तान को अब पता पड़ गया है कि मियाँ साहब की वो शक्ल नहीं है जो मियाँ साहब आज तक देते रहे हैं कि शरीफ हूँ। आज दुनिया को पता है। किसी लस्सी वाले के पास चले जाएं, किसी मज वाले के पास चले जाएं, किसी दुकान वाले के पास चले जाएं, तो आपको ये कहेगा कि ये गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। आप ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अब हिकमत अमली क्या होगी, हुकूमत पर वो किस तरह से दबाव बढ़ाएंगे, आगे कैसे मूव फॉरवर्ड करेंगे? अदालतों से तो आपको कभी इंसाफ मिला, कभी ना मिला, लेकिन नवाज शरीफ को हमेशा उनकी मर्जी का इंसाफ मिला। अब आपकी आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी? क्या अब फिर आप इमरान खान को साथ लेकर चलना चाहेंगे? बिस्मिल्लाह। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी अपोजिशन का इत्तेहाद जो है ये जमातों से कोई कट करके, जरदारी साहब तो इस मामले में सभी कुव्वतों को साथ लेके, गवर्नमेंट में भी साथ लेके चले और अपोजिशन को भी साथ लेके चलने का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत माजी में भी और अब भी हमारी कोशिश रही है। लेकिन ये डिपेंड करता है आने वाले दिनों में कि हालात क्या डेवलप होते हैं और अपोजिशन की बाकी जमातें किस तरह। भुट्टो साहब, भुट्टा साहब, जी बाबा साहब, शुक्रिया इजाजत देने का। क्या आप समझते हैं कि नवाज शरीफ को इस्तीफा दे देना चाहिए? हमने तो कहा, हमने डिमांड की है। होल्ड ऑन, ये सवाल कर रहे हैं सर। जावेद गौर की न्यूज़ से मेरा तल्लुक है। सर, आपने इस्तीफा की
मुताबिक को मनवाने के लिए क्या लाए? हम पहले तो देखेंगे कि दूसरी पॉलिटिकल फोर्सेस उनका क्या लाएमल है, और हम देखेंगे कि अवाम का क्या सोच है, और अवाम की सोच को लेके हम आगे चलेंगे। मसाई साहब, नहायत इहतराम के साथ आपने बात की कि जाद साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नरम गोशा रहा है, 93 की एग्जाम्पल दी है नवाज शरीफ के लिए, लेकिन एहतराम के साथ ये नरम गोशा तो आपके दिल में भी बहुत है उनके लिए। 4 सालों से हम देखते आ रहे हैं, बहुत मौकों पर आप लोगों ने उनको मजबूत किया जमहूरियत के नाम पे, जहाँ पे बिलावल भुट्टो साहब 27 दिसंबर तक उनके खिलाफ गो नवाज गो की तहरीक चलाने का ऐलान करते रहे, फिर एकदम ठंडे पड़ गए। तो अब भी क्या इसमें कोई कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अलहदा से कोई खुफिया डिप्लोमेसी के साथ मुबारकबाद का पैगाम भी ना पहुंचा दिया हो और अभी भी सारा हौसला ही हो? पहले भी कभी हमने मुबारकबाद का प्रोग्राम उनको नहीं पहुंचाया था। हम समझ रहे थे कि अगर पाकिस्तान नवाज शरीफ के हाथ में सेफ नहीं है तो इमरान खान के हाथ में भी सेफ नहीं रहेगा। मैंने पहले भी कहा है कि कोई भी अगर 25-50 हज़ार आदमी लेके रास्ते पे आ जाए तो क्या मैं उसको हुकूमत का तराजू दे दूं? ऐसा नहीं होता। ये एक तसर जो मीडिया में भी था, पब्लिक में भी था कि जब से पनामा लीक्स का इशू आया तो पीटीआई एग्रेसिव जा रही थी एमएलएन के खिलाफ, लेकिन पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी कमेटी का क्याम कराया, पीटीआई को लेके आई, तो ये तसर एक आम हो गया था कि पीपल्स पार्टी शायद बचाना चाह रही है मियां नवाज शरीफ को। आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको बचा लिया है तो आप डिसअपॉइंट किस बात पे हुए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से या नवाज शरीफ के बचने से? मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ इमरान खान के हमें छोड़ के वहाँ जाने से, इसलिए मेरी नज़र में तो इमरान ने बचा लिया है। सुप्रीम कोर्ट में अगर इमरान नहीं जाता, चूँकि हमें पता था कि यहाँ कोई फैसला नहीं मिलना, तो हम इमरान के पास वहाँ जाते सुप्रीम कोर्ट में, कोई लाएमल बना के सब मिल के साथ जाते तो एक दूसरा इफेक्ट होता। अगर एहतसाज एहसन वहाँ खड़े होके आर्ग्यूमेंट करते तो कोई और बात होती। अब मैं उनके फाजिल वकील के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, मगर उनके कोई रिपोर्टेड केसेस मुझे आप दिखा दें तो फिर मैं मानूं। पहले कानून साजी कर लें और उसके बाद ताकि सुप्रीम कोर्ट भी कुछ काम कर सके, लेकिन इमरान खान ने कहा कि नहीं, कानून साजी की बजाय हम वो सुप्रीम कोर्ट में गई। हमारा बड़ा पुराना मौका था। अच्छा, अपना बकार सदी को करना। बहुत शुक्रिया सर। ये बताइएगा कि आपने ऐलान किया था कि आप और चेयरमैन साहब दोनों कौमी असम्बली में आएंगे, और फिर आपने इसको मशरूत किया था पनामा के इस फैसले से। अब आप बताएं कि आपकी क्या पोजीशन है, कि आप आएंगे या नेक्स्ट इलेक्शन लड़ेंगे? इंशाल्लाह हम आएंगे ज़मीनी इलेक्शन में। शाहिद बेतला Shahid Mehta from from ARY News. I had one thought ARY News से सर मेरा सवाल ये है कि ये जो डिसीजन है पनामा पे सुप्रीम कोर्ट का है, आप समझते हैं ये मैनिपुलेटेड था, और क्या बिहाइंड द कर्टन जो है वो नून लीग की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया गया? देखिए, ये तो मैं कह नहीं सकता, मैं डिसीजन को कंडेम कर सकता हूँ। मैं जजों की पर्सनालिटी की बात नहीं कर सकता, ना मैं चमक की बात कर सकता हूं। मैं डिसीजन को कंडेम जरूर करता हूं। कौन सी टीवी से? मुझे पूछना ये था कि कौम को भी आप लीड करते हैं, सबसे बड़ी कौमी जमात भी आप हैं, आप कह रहे हैं कि हम दीगर पॉलिटिकल फोर्सेस से बात करेंगे, तो क्या वक्त जो आईनी मुद्दत है उससे पहले इंतखाबात कराने की तरफ पीपल्स पार्टी जा रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो हर फैसला करेगी जो कौम के मफाद में है। कौम के मफाद में ये है कि किसी भी तरीके से मियाँ साहब को ये बाबर करा दिया जाए कि आप फेल हो चुके हैं, आपसे हुकूमत नहीं चल रही, और आप खुदा के वास्ते किसी और को मौका दें कि वो आके इस पाकिस्तान को लीड करे। आपने जिस नारे पे आप आए थे कि मैं 3 महीने में अगर बिजली नहीं लाया तो मेरा नाम बदल देना, फिर 6 महीने में नहीं लाया, और अब कह रहे हैं कि इस 5 साल के बाद मुझे वोट दो कि 5 साल के बाद बिजली ले आऊँगा। मेरा सवाल सदर साहब आपसे भी है और इत्तेफाक एहसन साहब से भी है। इस मुल्क में एक तहरीक चली आज़ाद अदलिया की, और ये तस्वर सामने आया कि शायद दस्तूर पर जो अदलिया है वो आज़ाद हो चुकी है।
आज के फैसले के बाद आपका और रज़ाक अहसन साहब की क्या राय है? क्या अदलिया वाकई आज़ाद हुई है या आज भी नजरिया ज़रूरत के साथ में नहीं? एतजाज अहसन जवाब देंगे। देखें, जो अक्सरियती फैसला है ये नज़रिया ज़रूरत की इसमें से पास आती है और इससे यकीनन पाकिस्तान के वकला जो सड़कों पे निकले थे, जो आज़ाद अदलिया के लिए, इन जज साहिबान के लिए जिन्होंने सर हथेली पे रखा था, पुलिस के डंडे, लाठियाँ, गोलियाँ, टीयर गैस और 2 साल तसलसल से मूवमेंट तहरीक चलाई थी, वो आज सब बहुत मायूस हुए होंगे। बात यह है कि जो लॉयर्स मूवमेंट थी उसके जो मकासद थे वो ब्रॉड सोशल मकासद थे, जिनमें रियासत को मां जैसा बनाना था और हमारे ख्याल में इसकी व्हीकल और इसका इंस्ट्रूमेंट जुडिशरी होगी। जुडिशरी ने पहले भी एक पूरे दौर में मूवमेंट के बाद, बहाली के बाद और आज भी खासा मायूस किया है। आपने ये कहा आप जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसकी मजम्मत करते हैं, तो क्या मजम्मत करते हैं या आप इसको तस्लीम करते हैं? और अगर मजम्मत करते हो तो इस पे एहतजाज चलेगा? और इमरान खान को जो आपने ऑफर दी थी पहले कि हमारे साथ एहतजाज करें, क्या उस एहतजाज की तरफ आप जा सकते हैं सर? सर ये तो सब ऑप्शन हमेशा ओपन रहते हैं। हम तो मौलाना फजल रहमान से भी एक तवक्को करते हैं कि वो उनको छोड़ के हमारे तरफ आ जाएंगे। हम उन सब दोस्तों को बुलाते हैं। थैंक यू सर। आप देख रहे थे पीपल्स पार्टी की जानिब से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि नवाज शरीफ फौरी तौर पर मुस्ताफी हो जाएं।